أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. رب زدني علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما. سبق نمبر 22، نماز آج سے سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ عز وجل. اس میں ہم تمام قواعد تجوید کے جو پڑھے ہیں وہ سارے ریپیٹ کریں گے. جو جو بھی نماز میں آئیں گے ان کی ریویژن بھی ہو جائے گی، اور نماز کا صحیح پڑھنے کا جو قرت کا انداز ہونا چاہیے، یا جو نماز ہم نے زبانی یاد کی ہوئی ہے اس کو صحیح طریقے سے پڑھنا ہم سیکھیں گے. سبق نمبر 22 ہے یہ، اور اس کے بلٹ پوائنٹس دیکھیں کہ اس سبق کو ہجے اور رواں دونوں طریقوں سے پڑھیں. ہجے کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہجے کرنا ہم نے پیچھے ڈیٹیل میں سیکھا ہے. روانگی میں ہم اسے پڑھیں گے. پچھلے تمام اسباق کے قواعد اور حروف کی ادائیگی کا خاص خیال رکھیں. یہ ہم رپیٹ بھی کریں گے اور میں آپ کو انشاءاللہ عز و جل بتاؤں گا بھی. بالخصوص ملتی جلتی آواز والے حروف میں واضح فرق کریں. حروف قریب و صوت یعنی کہ جو کہ ملتی جلتی والے آواز والے حروف ہوتے ہیں ان میں فرق کریں گے. ان حروف میں فرق نہ کرنے کی وجہ سے، یعنی حروف قریب و صوت میں فرق نہ کرنے کی وجہ سے اگر معنی فاسد ہو جائے تو نماز نہیں ہوگی. اللہ اکبر. اور یہ دیکھیں کہ بالفرض اگر ہم تجوید کے ساتھ نہیں پڑھنا جانتے اور نماز میں ہم ایک دوسرے کی آواز، ملتی جلتی آواز جو ہے اس میں ہم فرق نہیں کر رہے، تو دیکھیں کہ ہماری نماز کیسے ہوگی. تکبیر تحریمہ یعنی جب ہم نیت کر کے ہاتھ باندھنے لگتے ہیں، اس سے پہلے جب ہم کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں، کانوں کی لو تک، اور کہتے ہیں اللہ اکبر. اب اس میں دیکھیں کون سا قاعدہ لاگو ہو رہا ہے. اس میں ہے لام کو کب موٹا پڑھنا ہے اور کب باریک پڑھنا ہے. تو ہم نے پڑھا تھا، میں آپ کو چلتا ہوں دوسری سکرین پر، وقف ہے اور تخفیف. یہ کہ لام، اس میں جلالت اللہ کے لام سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو تو اس میں جلالت اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، اور اس میں جلالت اللہ کے لام سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو اس میں جلالت اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے. اس میں جلالت اللہ کے لام کے علاوہ باقی تمام لام باریک پڑھے جائیں گے. یہاں پر دیکھیں کہ اس میں جلالت اللہ کا لام ہے اور اس سے پہلے اللہ یعنی الف پر زبر ہے، حمزہ زبر کے ساتھ ہے. اس وجہ سے اس کو پڑھیں گے اللہ، اللہ، اللہ. باریک نہیں پڑھیں گے، یعنی کہ اس طرح نہیں پڑھیں گے. اللہ اس طرح نہیں پڑھیں گے. اللہ، اللہ موٹا پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے ہو، اللہ. ہاں یہاں موٹا پڑھنا ہے، ہا نہیں پڑھنا بلکہ ہا پڑھنا ہے. اللہ، اللہ. اس کے بعد ہے اک، اک الف ہے یعنی حمزہ ہے، اس کو باریک پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. معروف اور باریک پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اک، اک موٹا بھی نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے. یہ باریک الف پڑھا جائے گا. اک. اس کے بعد ہے کاف باریک. اق کو نہیں ہے، یعنی کاف موٹا نہیں ہے، کینچی والا نہیں ہے، بلکہ کاف باریک ہے. ٹھیک ہے.
काफ बारीक है यहाँ पर। अक, उसके बाद है बार। बार। अब बर पे हम अल्लाहु अकबर क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि यहां पर हमने वक्फ करना है। यहां पर हमने वक्फ करना है। अब वक्फ की सूरतों पे मैं आपको ले चलता हूं। हमने रिसेंटली जो लेसन पढ़ा है वो वक्फ पर था। कलमे के आखिरी हर्फ पर जबर जेर पेश, दो जेर दो पेश, खड़ा जेर उल्टा पेश हो तो इस हर्फ को वक्फ में साकिन कर देंगे। इस वजह से हम यहाँ पर वक्फ ताम की इलामत है ये। इस वक्फ ताम की वजह से हम बर पे रा को साकिन कर देंगे, बारू नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। ठीक है। उसके बाद है सना, यानी हम, तारीफ, तारीफ इलाही। ठीक है। इसमें देखें, सुबह सबसे पहले कल कलह का कायदा लग रहा है। उसको हम देखते हैं कि कल कलह में हमने क्या पढ़ा था। ठीक है। कलकला में हमने क्या पढ़ा था? जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, ये जज्म की इलामत है। जज्म हरूफ कलकला पांच है। कौफ, तो, ब, जीम, दाल और इनका मजमुआ कुतुबु जद्दीन है। कलकला के माना जुम्बश और हरकत के हैं। इन हरूफ के अदा करते वक्त मखरज में जुम्बश सी होगी जिसकी वजह से आवाज लौटती हुई निकलेगी। ये हमने डिटेल में पहले पढ़ा है, इसकी एग्जांपल्स हमने देखी हैं। यहाँ हम सिर्फ रिवीजन की गर्ज से देखते हैं। और मैं आपको यहाँ मिसाल एक देता हूँ कि मेरे उस्ताद मोहतरम ने ये मिसाल हमें समझाई कि जिस तरह गेंद होती है ना, गेंद यानी बॉलिंग हम करते हैं, गेंद को हम जब वैसे फोर्स से मारते हैं और वो जमीन से टकरा कर फौरन ऊपर उठती है। इसी तरह कलकला के मैनी यानी कलकला में जो हम जुम्बश और हरकत पैदा करेंगे वो जमीन के साथ टकराई यानी मखरज के साथ जुबान टकराएगी और फौरन वापस लौटती हुई मालूम होगी। ठीक है। जिस तरह ये आतो पे हमने कलकला करना है तो इसकी मिसाल कैसे है? आतो, 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 यानी अपने मखरज से टकराने के बाद आवाज लौटती हुई मालूम होती है। तो यहाँ पर बा आया है, बा साकिन है, तो बा साकिन पर कलकला होता है। लिहाजा यहाँ पर कैसे पढ़ेंगे? सुबह, सुबह, सुबह। ठीक है। कलकला लाजिम है। कैसे पढ़ेंगे? सुबह, सुबह। फिर उसके बाद है सुबहानकल्लाहुम्मा, सुबहानकल्लाहुम्मा, सुबह, 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 सुबह। ठीक है। सुबह इस तरह नहीं पढ़ेंगे बल्कि कलकला वाजे करेंगे। सुबह, सुबह, सुबह। अच्छा। अब इसमें देखें कि सीन है तो सीन पे सीटी वाला हरूफ है तो सीन के सीटी भी जाहिर हो। सु, सु। उसके बाद कलकला सुब, सुब। उसके बाद है हा, हा, बारीक हा है। उसके बाद नून जबर ना। उसके बाद काफ बारीक है। और उसके बाद आ गया अल्लाह। तो यहाँ पर फिर वही कायदा रिपीट होता है कि इसमें जलालत अल्लाह के लाम से पहले वाले हर्फ पर अगर जबर हो तो अल्लाह का लाम मोटा पढ़ा जाएगा। तो यहाँ क्या हुआ? सुबहानकल्लाह, 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 सुबहानकल्लाह। फिर उसके बाद देखिए, हुम्मा, हा यहाँ पर मोटा है और मीम मुशद्दिद है। अब मीम मुशद्दिद के कायदों पे मैं आपको ले चलता हूँ। वहां हम मीम मुशद्दिद का कायदा रिपीट करेंगे
और समझने की कोशिश फरमाएंगे। अलबत्ता मीम मुशद्दिद का कायदा ये है कि मीम मुशद्दिद और नून मुशद्दिद जहां भी आ जाएं तो हमने वहां पर गुन्ना करना ही करना है। ठीक है। मीम मुशद्दिद और नून मुशद्दिद जहां भी होंगे वहां पर गुन्ना होगा। ठीक है। तो इसको कैसे पढ़ना है? सुब्हानकल्लाहुम्मा, सुब्हानकल्लाहुम्मा, सुब्हानकल्लाहुम्मा। गुन्ना जब करेंगे तो इसको कैसे पढ़ेंगे? हुम्मा। और गुन्ना क्या चीज है कि नाक के बांसे में आवाज को लेकर जाना। और इसकी मिकदार कितनी है? 2 हरकत के बराबर, यानी एक अलिफ की मिकदार के बराबर इसको नाक में लेकर जाना है। कैसे पढ़ना है? सुब्हानकल्लाहुम्मा। फिर उसके बाद है व बिहम्दिका, व बिहम्दिका, व बिहम्दिका। यहाँ पर वाव है, उसके बाद बा जेर बी है, उसके बाद हा बारीक है, हा के बाद मीम साकिन आया है। व बिहम, व बिहम, व बिहम। उसके बाद है दाल जेर दी। तो मीम साकिन आया है तो मीम साकिन के भी कायदे हमने पढ़े हैं। तो मीम साकिन के कायदों में देख लेते हैं कि यहाँ पर मीम साकिन के कवाइद में से कौन सा कायदा अप्लाई हो रहा है। ठीक है। मीम साकिन के कायदों पे चलती हैं और मीम साकिन के कायदों में हम देखेंगे कि यहाँ पर कौन सा कायदा अप्लाई हो रहा है। तो मीम साकिन के फौरन बाद यहाँ पर दाल आया है। तो हम यहाँ पर गौर फरमा लें कि मीम साकिन के बाद हर्फ बा और मीम के अलावा कोई भी हर्फ आ जाए, यानी दाल भी आ जाए, तो हम मीम साकिन में इजहार शफवी होगा, यानी गुन्ना नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमने गुन्ना नहीं करना इस मीम साकिन पर। और इस दाल की वजह से अगर यहाँ पर बा और मीम होता तो फिर गुन्ना होना था। अब इसको कैसे पढ़ेंगे? सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका। यहाँ पर भी देखें, वाओ जबर वा है, ता जबर ता है, बा अलिफ जबर बा। यहाँ पर अलिफ मद्दा आया है। अलिफ मद्दा क्यों हुआ? क्योंकि अलिफ से पहले वाले हर्फ के ऊपर जबर है। तो यहाँ पर हम हरूफ मद्दा वाली तख्ती पर जाते हैं, या हरूफ मद्दा वाले लेसन पे जाके हम रिपीट करेंगे कि हरूफ मद्दा क्या हैं, कब मद्दा होते हैं, और इनको पढ़ने का क्या तरीका है। एक मर्तबा हम रिपीट कर लेंगे। यहाँ पर देखें कि अलिफ, वाव और या हरूफ मद्दा 3 है, और अलिफ से पहले वाले हर्फ के ऊपर अगर जबर हो तो अलिफ मद्दा होगा। ठीक है। और इसकी मिकदार कितनी है? एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर खींच कर पढ़ना है। ठीक है। तो यहाँ पर हो गया वतबा, वतबा, यानी इसको इस तरह नहीं पढ़ना। वतबा, वतबा, इस तरह नहीं पढ़ना, बल्कि इसको पढ़ना है वतबा, यानी लंबा करना है। फिर उसके बाद है वतबारकस्मुका, कसमुका। यहाँ पर भी काफ डायरेक्टली सीन से मिल रहा है, और उसके बाद मीम पेश मुंह है, उसके बाद काफ है। वतबारकस्मुका। फिर उसके बाद है वतआला, वतआला। यहाँ पर देखें, दोबारा अलिफ मद्दा आया है। अलिफ मद्दा क्यों हुआ? कि अलिफ से पहले वाले हर्फ के ऊपर जबर है। और उसके बाद है खड़ा जबर। खड़ा जबर भी हरूफ मद्दा के कायम मुकाम होता है, लिहाजा इसको भी 2 हरकत के बराबर खींचना है। उसके बाद है जद, जद, यानी दाल हरूफ कलकला में से आया है। और हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी मीम जो मुशद्दिद हर्फ है उस पर कलकला करना है तो उसको जोर देकर जोश से पढ़ना है। ठीक है। कलकला वाली तख्ती पे लेसन भी हम चलते हैं, और वहां पर मैं आपको बता दूं कि जब हरूफ कलकला
हमजा साकिना की वाज़ेह है इसमें, बल्कि नहीं लिखा हुआ, दूसरी तख्ती में है कि जहां भी मुशद्दिद होगा हर्फ, मुशद्दिद वाली तख्ती में था, तो जहां पर भी मुशद्दिद होगा तो वहां पर हमने जोर देकर जोश से पढ़ना है ताकि कलकला वाज़ेह हो। फिर यहाँ पर देखें, जद्दू का, यहाँ पर हमने जाहिर करके पढ़ा, और उसके बाद वला इलाहा गैरुक, यहाँ पर लाम अलिफ ला पर मद्दा क्यों हुआ, ये हम देख लेते हैं। ये है मद्द मुत्तसिल की मिसाल। और मद्द मुत्तसिल हम देखेंगे कि मद्द मुत्तसिल क्या है। मद्द मुत्तसिल हमने पढ़ा था कि हरूफ मद्दा के बाद हमजा उसी कलमे में हो तो मद्द मुत्तसिल होगा, और हरूफ मद्दा के बाद हमजा दूसरे कलमे में हो तो मद्दे मुनफसिल होगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि हमजा किस कलमे में है। तो ये देखें, वला इलाहा, हमजा दूसरे कलमे में आया है। ठीक है, वो इलाह का मतलब इबादत के लायक, और ला वला यानी नहीं कोई, और नहीं कोई इबादत के लायक। ठीक है, और ये दूसरे कलमे में आ गया तो ये मद्दे मुनफसिल की इकसाम हो गई। वला, हरूफ मद्दा आ गया, अलिफ से पहले वाले हर्फ के ऊपर यानी जबर है, लाम के ऊपर जबर है, हरूफ मद्दा हो गया, और उसके फौरन बाद हमजा जेर ई जो है वो इलाह दूसरे कलमे में आया है, लिहाजा ये मद्दे मुनफसिल की इकसाम है। वला इलाहा गैरुक, गैरुक, यहाँ पर गैन या जबर गई यानी हरूफ लीन है। हरूफ लीन का कायदा हम देख लेते हैं। हरूफ लीन दो हैं, वाव और या। वाव साकिन से पहले जबर हो तो वाव लीन होगा, और या साकिन से पहले हर्फ पर जबर हो तो या लीन होगा, यानी दोनों से पहले वाले हर्फ के ऊपर जबर होना लाजमी है। तो यहाँ पर या है, ठीक है, या लीन है, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, गैरुक, गैरुक। यहाँ पर दुआ की वजह से हम वक्फ करेंगे, और वक्फ में हमने वक्फ के कायदों में पढ़ा है कि जब भी जबर जेर पेश हो तो उस पर हम साकिन कर देंगे, वक्फ करने की सूरत में उस हर्फ को साकिन कर देंगे। ठीक है, तो इसको किस तरह पढ़ेंगे, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, व ला इलाहा गैरुक, व ला इलाहा गैरुक। आज के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बाकी नेक्स्ट लेसन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व मा अलैना इल्लल बलाग, जज़ाकल्लाहु खैरा।